Hello friend, in this video we are going to start new chapter, that is the principle of inheritance and variation. Totally new concept for you. It is a genetics, study about DNA, study about gene, and this is the most important chapter for NEET, GUJGATE and Gujarat board. And the weightage of this chapter is a 4 marks question. इसमें से 4 marks के question आएंगे. Now what is the inheritance? You know this definition of this word inheritance मतलब कोई some characters which we are getting from our parents, then our parents has got from their parents, so on continuously. Some characters which we acquire from our parents, then we'll pass them to our generation. It is known as an inheritance. And what is variation? Here two word you have to remember. One is a variation and the second one is a diversity. I hope you know the difference between these two words, variation and the diversity. Now what is variation? The variation is a difference in one species. In one species, whatever difference you will observe, it is known as a variation. And what is diversity? In a particular area, so many species, some species or many species can be observed. तो इट इज़ नोन एज अ डाइवर्सिटी. वेरिएशन अभी हम लोग सिर्फ अगर हम लोग ह्यूमन का एग्जाम्पल लें तो होमोसेपियन सेपियंस, दैट इज अवर साइंटिफिक नेम. वी कैन सी वी ऑल आर ह्यूमन. वाई इज वी ऑल आर ह्यूमन? बिकॉज वी हैव अ 23 pairs of chromosome that we all know. If you want to be human, then you must have a 23 pairs, or you can say 46 chromosome. So we all are human. Then also you can say the difference between them. Difference between us, we all are not as similar. That is because of arrangement of, mostly in this chapter we are going to learn about is arrangement of nucleotide in DNA or the gene, whatever chromosome, chromatids, chromatin that we are going to learn. So variation is the arrangement of nucleotide. Why does the variation come in a particular species? It is due to the arrangement of nucleotide. Simply I will give you one example. We know that DNA is made up of nucleotide that we have done in 11. DNA is made up of 3 components: nitrogen base, sugar and the phosphate. And nitrogen base are purine and the pyrimidine. Purine, adenine and the guanine. Pyrimidine are the cytosine, thymine and the uracil that we have done in 11. But if I will write word stop, and STOP is a nucleotide which are present in all human beings present in the world. Now the stop, to stop this alphabet, I can write tops also, then I can write spots also, or I can write OTPS. You can see the words, words not, alphabets are same, but if I have changed their arrangement, then the meaning are also changed. Stop, then top, spots and OTPS, same thing occur in our body also. Nucleotide are same, that is ATCG, but the arrangement is different in different organism, different human, and that's why we all are different. And so the why does the variation come? The variation come due to the arrangement of nucleotide in the DNA. Now it is a diversity. Diversity is in a particular area. So we can say in our body there are so many species are living. So it is known as a diversity. And why does the diversity come? It is due to the presence of, or it is due to the number of chromosome. Already I told you, if you want to be human, then you must have 23 pairs of chromosome. If you don't have 23 pairs of chromosome, then you are going to be changed different species. For example, elephant. We are going to take it example. The elephant have a 56 chromosome. That means it have a 23 pairs of chromosome. So if you want to be an elephant, then you must have how many chromosome? Then the 28 pairs of chromosome. Same mango. So mango have a 40 chromosome, or you can say it is a 20 pairs. So if you want to be mango, then you have a 20 pairs of chromosome. So diversity is due to a number of chromosome, and variation is due to a arrangement of nucleotide in DNA, gene, chromosome, chromatin, whatever you say. But this difference you should know. Already I taught you so many times what is variation and what is diversity.
Now come to our main chapter. In this video we are going to learn introductory portion, and it is the most important for us. In starting of our chapter they have asked you few questions. So one, have you ever wondered why an elephant always give birth to only a baby elephant that you have seen, नॉट अदर एलिमेंट के? अगर एलिफेंट है तो उसमें से एलिफेंट का ही बेबी बाहर आएगा, ऐसा नहीं हुआ कि कभी चिकन निकला और कभी टाइगर का बेबी निकला, ऐसा नहीं है. इन सेम ऑल्सो ह्यूमन आर ऑलवेज गिव अ बेबी टू ऑलवेज गिव अ बर्थ टू अ ह्यूमन बेबी. तो वाई डज? सो इसका एग्जाम्पल हमको ऐसे तो पता ही है, वी नो डैट. अदरवाइज वी आर गोइंग टू लर्न इन चैप्टर नंबर आई थिंक 3/4 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन. इसमें क्या है कि हम लोगों को पता है कि ड्यूरिंग बिफोर फर्टिलाइजेशन, इवन वी हैव डन इन लास्ट चैप्टर that sexual reproduction take place in the three event: pre-fertilization, fertilization and the post-fertilization. Pre-fertilization is a gametogenesis and the transfer of gametes, and if plant body is 2n or organism body is 2n, then during gametogenesis we'll do meiosis. Already we have done meiosis. Now what is a meiosis? It will reduce the number of chromosome, it will reduce half the number of chromosome. So if you have a 2n, that is for example, मैंने आपको आगे ही बोला एलिफेंट में कितने क्रोमोसोम है, 56. meiosis होगा, उसमें से कितने सेल प्रोड्यूस होंगे, 4. 2n है तो उसका जेनेटिक मेकअप हो जाएगा n, and it will get the 56 का हाफ कितना होगा, ओके 28. जितने भी मतलब सॉरी जितने भी नहीं, एक्चुअली 4 ही सेल प्रोड्यूस होंगे. ईच सेल विल गेट 28 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नॉट अ 28 पैर्स. इट विल गेट 28 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. 2n था वो n हो गया. सेम मेल में भी, ये मेल है तो सेम फीमेल में भी हुआ होगा. सपोज इट इज अ स्पर्म सेल, देन nn सेल वाले कौन से हैं, एग सेल. फिर हमको पता है प्री फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी प्रोसेस होने वाली है, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. सो n plus n, it will combine and it will form 2n, and we know that cell it is known as a zygote. 28 plus 28 अगेन कितने हो गए, 56. क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी में गैमेटोजेनेस होने वाले हैं और गैमेटोजेनेस होते हैं तब हमारी बॉडी कौन सी प्रोसेस करती है, मियोसिस. ओके, नॉट आवर बॉडी, जो मदर सेल है जिसमें से गैमेट्स प्रोड्यूस होने वाला है, इट विल डू मियोसिस एंड इट विल reduce the number of chromosome by half. So 2n होगा तो n, it is a too simple, and it will form zygote, and again you will get your actual number of chromosome, that is what, 56. अगर ये प्रोसेस एलिफेंट में हुई है, एलिफेंट के फादर और मदर में जो 56 थे तो उसके बेबी में भी कितने आ गए, 56. अगर अभी हम सोचते हैं केसेस 2, सपोज ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस हमारी बॉडी में कि हमारे सेल विल प्रोड्यूस मिटोसिस मतलब एक में से कितने सेल प्रोड्यूस होंगे, 2. इट विल नॉट मतलब इट विल कीप द जेनेटिक मेकअप सेम एज द पेरेंटल सेल. सो बोथ विल गेट 2n. सो बोथ सेल हैव अ 56 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सपोज इट इज अ स्पर्म सेल and it is a ovum cell, both will fuse and it will form zygote. But here what will happen, 56 plus 56, I think 112 something, हाँ इतने ही हो गए. तो ये जो बेबी है, अगर जो पेरेंट्स थे उन लोगों ने क्या किया, मिटोसिस, तो जो बेबी है उसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, डबल हो गए. मतलब जिसमें 56 था तो बेबी में कौन सा हो गया, 1112, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4n. तो अगर एलिफेंट ने रिप्रोडक्शन किया तो उसमें से जो बेबी, सपोज हम लोग सपोज कर ले तो ये जो 1112 जो क्रोमोसोम है सपोज टाइगर में है, तो एलिफेंट अगर रिप्रोडक्शन करेगा और उसमें से बेबी कौन सा आएगा, टाइगर. देन ये टाइगर है, अगेन वो भी मैच्योर होगा तो वो भी रिप्रोडक्शन करेगा, फिर 112 प्लस 112. तो जैसे जैसे पेरेंट सेल रिप्रोडक्शन करेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते जाएंगे और न्यू स्पीसीज फॉर्म होती जाएगी. मतलब जो एक्चुअल स्पीसीज है वो स्पीसीज टोटली कैसे हो जाएगी, एक्सटिंक्ट. लेकिन हमको पता है ऐसा होता नहीं है. क्यों? उसका रीज़न और उसका आंसर क्या है, हैव यू एवर वंडर वाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्ड्स ओनली टू अ बेबी एलिफेंट नॉट अ अदर एलिमेंट? बिकॉज उसका आंसर आएगा ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस एलिफेंट हैज डन विच प्रोसेस, मियोसिस. सेकंड क्वेश्चन, they have asked why a mango seed form only a mango plant and not any other. सेम आंसर आएगा, उसका भी आंसर क्या आएगा,
मियोसिस। हम लोगों ने लास्ट ही जो चैप्टर किया, चैप्टर नंबर 2, इसमें हमने पढ़ा था कि जो प्लांट सेल है पोलन ग्रेन पीएमसी, एक पीएमसी में से कितने कितने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगी? 4। अगर उसका जेनेटिक मेकअप 2n है तो जिसमें से 4 जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगी इट विल NNN। सेम हम लोगों ने पढ़ा MMC whose genetic makeup was 2n, but here no ovum cell, here only one cell will produce, that we have done 3 cell will degenerate and only 1 cell active। जो एक्टिव होगा वो अगेन से मिटोसिस करेगा, एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन, दैट वी हैव डन इन लास्ट चैप्टर। और मैंगो में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 20 पेयर्स, एंड 20 पेयर्स दैट इज 40 क्रोमोसोम। सो 20 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे, ये दोनों फ्यूज हो जाएगा और 20 + 20 दैट इज कितने हो गए? 40। सो जो मैंगो का प्लांट है, इसमें से मैंगो का सीड है, इसमें से प्लांट भी कौन सा प्रोड्यूस होगा? मैंगो, बिकॉज ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस दे हैव डन व्हाट? Meiosis। So this is 2 answer। Then third question they have asked, are the offspring, this is the most important, are the offspring identical to their parents? Very interesting question that you have seen। are the offspring identical to their parents? तो इसका रीज़न, या थोड़े बहुत होते हैं, थोड़े बहुत नहीं होते। इसका रीज़न क्या होता है कि सपोज यू आर देयर, दिस इज यू हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम? 46, और यू कैन से यू हैव 23 pairs of chromosome from father and mother। we know फादर के जो स्पर्म सेल थे उसमें हुआ था मतलब मियोसिस, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, देन मदर में से आए 23। जो भी आप हो तो उसमें से 23 क्रोमोसोम आपके फादर के हैं, 23 क्रोमोसोम आपके मदर के, दोनों के फ्यूज हो गया, और जो भी कुछ हो वो आप है जिसमें कितने क्रोमोसोम है? 46। तो वाई डज यू आर लुकिंग सेम टू सेम or not a same to same? 99%, 90%, 80% you are looking same to your parents, because you have a half number of chromosome from your father and half number of chromosome from your mother। It is obvious if you are, जो आपके पास किसी का है तो थोड़े बहुत कैरेक्टर्स आप में उसमें उसके जैसे आने ही वाले हैं, तो सेम है। आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स? यस, और समहाउ थोड़े बहुत कैरेक्टर्स सेम रहेंगे, बिकॉज यू आर फॉर्म फ्रॉम फादर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ फादर एंड हाफ क्रोमोसोम ऑफ मदर। देन डू दे शो दैट आई टोल्ड यू नॉट 100%, डू दे शो डिफरेंस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स? और उसका रीज़न आएगा मियोसिस। तो हमको पता है कि वी नो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस मियोसिस। ओके, नाउ फर्स्ट विल डन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, दैट वी हैव डन इन 11th also, but then also will revise it, cell cycle and cell division। it will done in two phase। one is a interphase and second is a M phase। interphase 3 phase G1 S and G1 S and G2। now interphase is which phase? so during which the cell is going to be prepared for the cell division। cell division करने के लिए पहले से रेडी होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेस। इसके कितने फेज है? G1 S एंड G2। ओके, 11 का मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ था कि अगर सेल में G1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 2n एंड DNA है 4C, तो G1 में इतना है, तो S में क्या होगा? DNA रेप्लिकेशन। और DNA रेप्लिकेशन मतलब DNA खुद की कॉपी बनाता है, जो हम लोग 12th में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 4C था तो वो कितना हो जाएगा? 8C। तो सपोज स्टार्टिंग में 2n, दैट मीन्स 2 pairs ऑफ क्रोमोसोम यू हैव। DNA कितने हैं? 1 2 3 4 इतने हैं आपके पास। DNA रेप्लिकेशन होगा, मतलब जो है वो पूरा उसकी ऐसे कॉपी बना देगा। तो हुआ कितना? 2n, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे? मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिड बना वो दोनों एक दूसरे के सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाएगा, और इसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम, बट द quantity of DNA will increase during which phase? to which phase? H phase। now G1 S and G2। now M phase is again, now it will done in 2 ways। first one is a karyokinesis and second is a cytokinesis।
Karyokinesis, we know division of nucleus. Cytokinesis is a division of cell. Now karyokinesis, here you have a two option. Either you will do mitosis or you will do meiosis. मिटोसिस मतलब एक में से दो सेल, मियोसिस मतलब एक में से चार सेल. मैंने आपको 11th में भी पढ़ा है कि ये जो हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 12. दिस चार्ट यू मस्ट हैव रिमेंबर बिकॉज दिस टॉपिक और this your basic you have to revise so many chapter this theory will come. So karyokinesis, mitosis and meiosis. Now mitosis, that is a 2n में से कितने सेल होंगे, 2n रहेगा और 1 सेल में से कितने सेल प्रोड्यूस होंगे, 2. meiosis 2n में से जो सेल का जेनेटिक मेकअप है वो इट विल बिकम n और जो 1 है उसमें से कितने सेल प्रोड्यूस होंगे, 4. meiosis will happen to meiosis 1 and meiosis 2. Now meiosis 1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and the telophase. So meiosis 2 में pro, meta, ana and the telo. The most important one is a prophase, is again divided into 5 subphase, that is a lactotin, zygotin, pectin, diplotin and डाइकाइनेसिस. meiosis 1 का जो प्रोफेज है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 5 फेज, दैट इज अ लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेक्टिन, डिप्लोटिन एंड द डाइकाइनेसिस. एंड अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अ पेक्टिन. We know which event occur during this phase, but the most important one is a pectin, and pectin is a known as a very vital important process. It is a crossing over. Now what is crossing over? Is a exchange of genetic material. Exchange of genetic material, it is known as a pectin, and during the pectin state there is a most vital event take place. It is a exchange of crossing over or sorry exchange of genetic material. So यहाँ पे जो उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि डू दे मतलब द ऑफस्प्रिंग है, दे शो डिफरेंस इन सम और सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स. तो उसका रीज़न मियोसिस तो है कि तुम लोग तुम्हारे पेरेंट्स के जैसे दिखने वाले हो, मतलब 100% नहीं जैसे मूवी में दिखाते. बाहुबली है, देन बाहुबली 2 है, इवन क्रिश है जो ऋतिक रोशन वाला, जिसमें जो दिखाया है कि जो फादर है सेम टू सेम हमको पता है कि सेम एक्टर रोल प्ले कर रहा है. लेकिन आप लोगों ने रियल लाइफ में ऐसा नहीं देखा होगा कि जो पेरेंट्स है उसकी एग्जैक्ट टू 100% कॉपी उसका फीटस और उसका जो सन डॉटर वॉटेवर जो भी कुछ होगा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि क्या होता है मियोसिस, और मियोसिस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर, एंड क्रॉसिंग ओवर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ क्रोमोसोम. क्रॉसिंग ओवर किस पे डिपेंड करेगा? तो लेंथ ऑफ क्रोमोसोम. अगर क्रोमोसोम की लेंथ ज़्यादा है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा है. जो मैंने आपको 11th में बोला है कि अगर हम लोग 2 थ्रेड लेंगे, अगर एक थ्रेड क्या बोलेंगे उसको स्मॉल है और एक लॉन्गर है, तो जो लॉन्गर है तो उसमें जो रैपिंग और गुचड़ा आई डोंट नो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. लेकिन अगर जो स्मॉल होगा तो उसमें ऐसे गुचड़ा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. तो लेंथ क्रॉसिंग ओवर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, एंड जितनी क्रोमोसोम की लेंथ ज़्यादा होगी उसमें क्रॉसिंग ओवर कितना होगा, ज़्यादा. लेकिन एटलीस्ट क्रोमोसोम बड़ा छोटा हो लंबा हो कितना भी हो, लेकिन एटलीस्ट 1 क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस. And due to 1 crossing over there is a no clone formation that we have done in first chapter. During asexual reproduction clone take place. Clone मतलब 100 to 100% they are similar to their parents, but sexual reproduction में there is a no formation of clone because due to the reason of what? Crossing over. At least 1 crossing over तो होगा जो आपके पेरेंट्स का, अगर आप कोई भी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड they will be similar 99.9%, but 0.1% there is a difference in any characters, that is due to a crossing over. It depends on length of chromosome. So that do they show difference in some or their characters? that हो गया. Now have you ever wonder why siblings sometime look so similar to each other and sometime even so different? It is also interesting. आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो भाई बहन है, सपोज यू, then it is your sister and it is your brother.
पेरेंट्स रहेंगे आपके सेम, तो यहाँ पे आपके फादर, यहाँ पे मदर, मतलब जो जेनेटिक मेकअप आपके पास है वो सेम जेनेटिक मेकअप आपका सिस्टर का और ब्रदर का होने वाला है, क्योंकि जो क्रोमोसोम आपने गेन किए हैं वही क्रोमोसोम आपके सिस्टर एंड ब्रदर के पास आए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप तीनों हो, लेकिन तीनों के तीनों 100% आप लोग सिमिलर आइडेंटिकल रहने वाले नहीं है। उसका रीज़न क्या आएगा हमको पता है। एक तो पूरे क्वेश्चन का रीज़न, जितने भी क्वेश्चन पढ़े, एक तो मियोसिस, देन बाकी क्या है उसमें क्या आएगा, क्रॉसिंग ओवर। नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट क्रॉसिंग ओवर, इट इज़ अ रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस मतलब वो कहाँ पे होगा, किस जगह पे जेनेटिक एक्सचेंज होगा, इट इज़ नॉट डिसाइडेड। सपोज फादर एंड मदर सेम है, तो यहाँ पे क्रॉस, ये आपके क्रोमोसोम है। ड्यूरिंग फादर में गैमेटोजेनेसिस होने वाला था, तब आपका जो स्पर्म सेल प्रोड्यूस होने वाला था, जिस स्पर्म से आप प्रोड्यूस हुए हो, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होगा। ओके, आपके फादर के पास किसके क्रोमोसोम हैं, तो किसके हैं, योर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, सेम यहाँ पे भी है। तो फादर में जो क्रॉसिंग ओवर होने वाला था ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ योर स्पर्म सेल, तो यहाँ पे हुआ। देन आपकी सिस्टर में यहाँ पे हुआ और आपके ब्रदर में यहाँ पे हुआ। यू कैन नॉट से इट इज़ जो आप पे यहाँ पे बीच में हुआ, तो आपके ब्रदर और सिस्टर में भी क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होना चाहिए, बीच में। क्रॉसिंग ओवर इज अ विच टाइप ऑफ प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस। यू कैन नॉट से कि हाँ मेरे में यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे भी यहाँ पे ही होना चाहिए, ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो सिबलिंग होते हैं वो 100% सिमिलर, ओके 100% तो होने ही नहीं वाले, लेकिन 99% वो लोग सिमिलर होते नहीं होते। क्यों नहीं होते, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज अ विच टाइप ऑफ प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस, और सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम इवन शो डिफरेंट। अगर क्रॉसिंग ओवर थोड़ा बहुत, मतलब जो लोकेशन है अगर वो एकदम ज़्यादा क्लोज हो गई तो सेम होने वाले हैं, अगर बहुत दूर हुई तो वो कैसे रहने वाले हैं, सो डिफरेंट। सो ये जो हम पूरा पढ़ने वाले, जो हम लोगों ने पढ़ा कि क्रॉसिंग ओवर एंड मियोसिस एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सो दिस all things will come in one word, it is genetics. The study about what gene is known as a genetics, in this chapter we are going to learn.